अस्सलाम वालेकुम। सो आज के चैप्टर में हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करेंगे और दिस इज़ यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स विद मॉडर्न फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 37 एंड let's start this special theory of relativity. Few topics of this are covered in our syllabus, so we're going to study only the topics that we are we are given in the syllabus. So special theory of relativity has made wide-ranging changes in our understanding of the nature, but Einstein based it on just two simple postulates. So what are the postulates? And first things first, why we need special theory of relativity. So हमें पता है कि in our world the macroscopic bodies move at very normal speeds, with not very high speeds that are comparable to the speed of light. So normal bodies जो कि ordinary speeds पर move करती हैं, for them Newtonian mechanics is perfect. But as you go to the speed of as you approach the speed of light, as v is approaching c, so हमें कुछ there are some special effects that comes into play और हम उनकी results देखेंगे कि what are those. That is there is some time dilation and length contraction happening. So that those things start happening. So special theory of relativity हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में, यानी ये उसके consequences जो हैं हम उनकी स्टडी करते हैं कि as you move at higher speeds, what are the consequences, what are the things that you have to go through. और so these proportions जो कि हमारे लिए special theory of relativity लेके आती है, वो क्या है, that the events now this is only theory of relativity, ठीक है. So events that are simultaneous for one observer may not be simultaneous for another observer. So for simultaneous events, what do we mean? So for example वो कहते हैं कि as you there's a, let's say you say I woke up 7 o'clock in the morning. So 7 o'clock in the morning का मतलब है कि आप उठे और आपने उसी टाइम देखा और it was 7 o'clock. So both events, that is you waking up and the clock showing 7 o'clock are simultaneous. ठीक है. तो simultaneous events जो हैं, कहता है for two observers in two different frame of references, those simultaneous events may not be simultaneous. ठीक है. For one it may be simultaneous कि दो events जो हैं वो simultaneous हो रहे हैं, but for another observer those simultaneous event may have a time interval between them. ठीक है. यानी किसी एक बंदे के लिए दोनों कोई दो इवेंट हुए और वो एक ही टाइम पे हुए, यानी एक बंदा उठा और लेट्स से उस टाइम कुछ हुआ था, या आप कह लो एक फायर क्रैकर यहाँ फटा और यहाँ पर जो है वो कोई और एक इवेंट हुआ, कोई लाइटनिंग बोल्ट चली और यहाँ पे एक फायर क्रैकर जो है वो एक्सप्लोड हुआ. सो ये दोनों इवेंट जो है वो एक सेम टाइम पे हुए हैं. बट फॉर अनदर ऑब्जर्वर दैट मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग पर्सन, जो कि इन दोनों इवेंट को साइमल्टेनियसली मेजर कर रहा है, मे बी उस पर्सन के लिए जो कि मूव कर रहा हो, ये दोनों इवेंट्स जो हैं साइमल्टेनियस ना हो, बल्कि एक पहले हुआ हो और दूसरा बाद में हुआ हो. तो यानी साइमल्टेनिटी जो है वो हमारे पास आ गई, दैट टू ऑब्जर्वर जो हैं उनके लिए इवेंट्स जो है साइमल्टेनियस हो, मतलब एक किसी के लिए हो सकते हैं और मे बी कोई और मूव कर रहा होगा तो उसके लिए वो साइमल्टेनियस नहीं भी हो सकते. सो यानी देयर इज़ साइमल्टेनिटी जो है इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स. ठीक हो गया. सो पहली तो ऑब्जर्वेशन ये है. When the two observers moving relative to each other measures a time interval, a length, they may not get the same result. So one may measure the length and time between one and two event. जैसे हमने साइमल्टेनिटी ही ऊपर देखा. सो जब हम साइमल्टेनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी दो जो इवेंट्स हैं ये तो किसी और ऑब्जर्वर के लिए दो डिफरेंट टाइम पे हो सकते हैं. तो यहीं से हमारे पास एक कंक्लूजन आता है कि जो दोनों ऑब्जर्वर हैं उनके लिए टाइम सेम नहीं है.
ठीक है। एक के लिए जो दो इवेंट हैं वो सेम टाइम पे हुए हैं, दूसरे के लिए दोनों डिफरेंट टाइम पे हुए हैं, एक पहले व दूसरा बाद में हुआ है। सो टाइम इज़ नॉट सेम फॉर टू ऑब्जर्वर्स। ऑल्सो लेंथ इज़ नॉट सेम, सो टाइम एंड लेंथ आर डिफरेंट। फॉर द कंजर्वेशन interval for the conservation principle for momentum and energy to be valid in all inertial systems. Okay, so conservation of energies जो हैं and momentum, so momentum conservation, energy conservation जो कि physics के important laws हैं, they are valid for all inertial frames. अच्छा inertial, अच्छा अब यहाँ पे जो another thing that we study when we study the special theory of relativity is the difference between inertial and non-inertial frames. So और ये जो सारे हम laws पढ़ेंगे आगे special theory of relativity के, they are applicable only in inertial frames. What are inertial frames? Inertial frames are the frames in which there is no acceleration. So a frame which is moving with constant speed. See acceleration ना होने का मतलब ये है कि ये फ्रेम कभी भी रुकेगा नहीं या ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, ना डीसेलरेट करेगा ना एक्सेलरेट करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. A perfect example of an inertial frame is that of our earth. तो ज़मीन जो है वो एक constant speed के साथ मूव कर रही है. और सबसे बड़ी बात जो एक आप कह लें कि इनर्शियल फ्रेम की होती है कि अगर आप उस इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहे हैं ख़ुद, तो आपको उस मूवमेंट के बारे में कोई यानी अंदाज़ा नहीं हो पाता. इफ़ यू आर नॉट सीइंग दी आउटसाइड, यू विल नॉट नोटिस दैट यू आर मूविंग एट ऑल. तो कंसिडर करें जैसे अगर आप एक बहुत ही स्मूथ रोड के ऊपर किसी गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी हमेशा लेट्स से कुछ 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी जा रही है और उस रोड इतनी स्मूथ है कि कोई झटका नहीं लग रहा, और ये 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और आप इसके अंदर बैठे हुए हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब आपको इसमें बैठे हुए ये फील नहीं होगा अगर आप एक और काम ये करें कि ये जो गाड़ी है इसकी जो शीशे हैं उनके ऊपर एक पर्दा लगा दें ताकि आपको बाहर की चीज़ें नज़र ना आएँ जो पीछे की तरफ जा रही होती हैं जब हम गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं. तो द रोड इज़ नॉट बम्पी, यू कैन नॉट सी आउटसाइड, सो आपको ये लगेगा आप रेस्ट पे हैं, ठीक है. सो इफ़ यू आर मूविंग इन अ इनर्शियल फ्रेम, देयर इज़ नो डिफरेंस वेदर यू आर मूविंग और यू आर एट रेस्ट. तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ज़मीन पे हैं और ज़मीन जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है, तो ज़मीन की जो मूवमेंट है वी डोंट फील इट बिकॉज ज़मीन जो है वो ना तो एक्सेलरेट हो रही है, नाइदर इट्स एक्सेलरेटिंग और डीसेलरेटिंग, ठीक है. द ओनली थिंग वी कैन जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन मूव कर रही है, दैट इज़ कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारी जो स्पेस है उसमें स्टार्स मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है कि हमें ज़मीन की रोटेशन फील होती है. सो ज़मीन की रोटेशन प्लस ऑर्बिटल मोशन दोनों एक कांस्टेंट स्पीड से हो रही हैं. वी कांट फील इट अनलेस वी सी द डिस्टेंट स्काई, वी सी अदर स्टार्स इन द स्काई. सो यहाँ तक आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि रिलेटिविटी में हमारे पास दो इवेंट्स साइमल्टेनियस किसी एक ऑब्जर्वर के लिए हो भी सकते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं भी हो सकते. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि साइमल्टेनिटी जो है वो एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है. एब्सोल्यूट किसी चीज़ का होने का मतलब ये है कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है. एवरीवन हैव द सेम कॉन्सेप्ट अबाउट दैट ट्रूथ कि ये इस तरह है. यानी अगर दो इवेंट साइमल्टेनियस हैं तो हर बंदा जो है मूव कर रहा है, जो रेस्ट पे है, वो उन दोनों इवेंट को साइमल्टेनियस ही देखेगा. तो यानी ऐसा नहीं है. साइमल्टेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. इट वेरीज एज यू वेरी द फ्रेम. एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शियल फ्रेम. सो एक बंदा रेस्ट पे है, ये एक इनर्शियल फ्रेम है. एक बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एक इनर्शियल फ्रेम है. इन दोनों फ्रेम्स के लिए साइमल्टेनिटी जो है वो डिफरेंट होगी बिटवीन टू इवेंट्स. नंबर एक ये. नंबर टू हमने कहा कि जो ऑब्जर्वर है जो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव कर रहे हैं, देयर लेंथ्स एंड देयर टाइम्स मे बी डिफरेंट, ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज़ कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम है, दीज प्रिंसिपल विल बी वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, चाहे वो कोई बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है.
हम आगे जाके बहुत सारी एग्जांपल्स में जहाँ हम लेबॉर्ट्री सिस्टम और सेंटर ऑफ मास सिस्टम लेते हैं उसमें हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से कवर भी करते हैं और कि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके हम अपनी चीज़ों को सॉल्व भी करते हैं। तो ये दोनों एनर्जी एंड मोमेंटम जो है इनकी कंजर्वेशन की वैलिडिटी सारे इनर्शियल फ्रेम्स में सेम है। अब जो फर्स्ट टॉपिक हमें देखना है इसमें दैट इज़ दिस इनवेरियंस ऑफ फिज़िकल लॉज। दैट इज़ कि all the physical laws, for example one of the law is कि आपके पास जो फोर्स है इट इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सलरेशन। सो ये एक फिज़िकल लॉ है। दिस फिज़िकल लॉ विल बी सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स वेदर वन इज़ मूविंग और एट रेस्ट। सो हमने ऊपर कहा कि लेंथ चेंज होगी, टाइम चेंज होगा, मे बी वेलोसिटी भी चेंज हो, these things will be different for two inertial frames, but जो फिज़िकल लॉज हैं वो जो कंक्लूजन निकालेंगे हम इनको लेंथ, टाइम और वेलोसिटी को या पोजीशन को पुट करके, जो एक फ़िज़िकल लॉज के अंदर इनको पुट करके फोर्स ये निकालेंगे, ये लेट से v इज इक्वल टू आई आर एक फ़िज़िकल लॉ है अनदर, इसमें हम करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके v निकालेंगे। तो ये चाहे आप किसी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं या मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, आपके पास इन फिज़िकल लॉज के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो दे आर इनवेरिएंट। फिज़िकल लॉज जो हैं देमसेल्फ दे आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, सो आइंस्टाइन की पॉस्टुलेट है इसके बारे में। द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन इज़ दैट इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉस्टुलेट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड इट सेज दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, which is what we studied above, कि whatever the frame of reference is, so there could be different time, different length, different velocity, different position of things, but overall जब हम चीज़ें पुट करके जो हमारा लॉ है उसके अंदर पुट करके हम किसी चीज़ का आंसर निकालेंगे तो वो सेम रहेगा। अच्छा, इसके एग्जांपल के तौर पे कहते हैं, सपोज करें, हियर आर टू एग्जांपल्स। सपोज दैट यू वॉच टू चिल्ड्रन प्लेइंग कैच विद अ बॉल while three of you are aboard a train moving with constant velocity. Your observation of motion of the ball, no matter how carefully done, can't tell you how fast or slow you're moving or whether you're moving or not. This is because Newton's law of motion are the same in every frame of reference, in every inertial frame of reference. So ये बिल्कुल ऐसे जैसे इसको हम we can apply it on earth as well, that only just by seeing the stars are moving or if the sun is moving around us, आपको अगर याद है, आपको अगर पता है तो हम उससे पहले यानी जब हमारे पास ये नहीं था कि हम ज़मीन से बाहर जाके देख सकें, वी कंसिडर्ड दैट अर्थ इज़ स्टेशनरी। तो हम चाहे अपनी बाहर, अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम में हैं जिसमें कि आपका रेस्ट पे होना या कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे होना एक बराबर है, सो उसमें रहते हुए यू कांट टेल कि वेदर यू आर मूविंग और यू आर एट रेस्ट। ठीक है, सो just by observing the outside of your reference frame you can't tell if you're moving or at rest. ठीक है, one of the example is this. Another example is कि let's say you have a coil and there's a magnet, और जैसे ही मैग्नेट इसके करीब आता है यहाँ पे हमारे पास करंट शो होता है। ठीक है, सो in this frame the magnet is moving and the coil is at rest, but another frame जिसमें मतलब इसका एक हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर एक फ्रेम, दो इनर्शियल फ्रेम है, लेट्स से एक फ्रेम जो है वो रेस्ट पे है, दूसरा जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं कि मैं मूव नहीं कर रहा और दूसरा मूव कर रहा है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा जो है वो रेस्ट पे है और दूसरा मूव कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में होने का मतलब है कि दोनों या तो रेस्ट पे हैं या फिर
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो लेट्स से ये वाला बंदा रेस्ट पे है, v इज इक्वल टू 0 है इसके लिए, और ये बंदा जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ये पर्सन जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कैन इक्वली क्लेम दैट ही इज़ एट रेस्ट. सो ये कह सकता है कि मेरी वेलोसिटी तो 0 है, मैं तो मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये जो बंदा है जो कि रेस्ट पे है ये दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी नेगेटिव v. ठीक है, तो रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम्स में, ठीक है, ये बार बार मैं ये बता रही हूँ कि हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहे हैं जिनमें रेस्ट पे होना या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होना होता है और किसी किस्म की मोशन नहीं होती. सो both the person can equally claim that I am at rest and the other person is moving. ये बंदा रेस्ट पे है, ये बंदा वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. according to him the other this person is moving, but according to him this person is moving in the opposite direction. ये कहेगा मैं तो रेस्ट में. ये अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हों तो यू कैन क्लेम कि आप रेस्ट पे हैं. अगर आप मतलब आप अगर सोचना ना चाहें कुछ भी कि आपकी ट्रेन जो है मूव कर रही है, आपको किसी किस्म का झटका नहीं लग रहा, तो आप एक बिल्कुल स्मूथ जो है वो सफ़र कर रहे हैं सपोज करें, तो आप कहेंगे कि बाहर जो दरख्त हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और आप आगे नहीं जा रहे. आप तो रेस्ट पे हैं लेकिन दरख्त पीछे की तरफ जा रहे हैं. सो ये चीज़ हमने छोटे होते, अगर आपने भी कहीं ट्रेन का सफ़र किया है तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ होती थी कि ट्रीज़ आर मूविंग बैकवर्ड. तो बहरहाल ये हम कह रहे हैं कि मैग्नेट जो है वो इस तरफ मूव करे, कॉइल स्टेशनरी हो, या कॉइल इस तरफ मूव करे, मैग्नेट स्टेशनरी हो. ये दोनों हालतें सेम हैं, एग्जैक्टली इक्वल. यानी इन दोनों सूरतों में हमारे पास जो एमीटर है वो सेम ही करंट शो कर रहा है. ठीक है, सो यानी दिस इज़ अनदर एग्जांपल that you can't tell the difference between who is moving and who is at rest. That is they both have same physical laws. यानी इसके अंदर भी अगर आप v इज इक्वल टू आई आर जो है वो अप्लाई करें और इसके ऊपर भी v इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करें, दोनों में सेम आंसर आएगा. ऑल्दो एक में मैग्नेट रेस्ट पे है, दूसरे में मैग्नेट मूव कर रहा है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. और the next postulate of Einstein, so two postulate हैं. The next postulate is that the speed of light in vacuum is same in all inertial frame of reference and is independent of the motion of the source. ठीक है, so speed of light is same का मतलब है whether you are at rest or you're moving with constant velocity, the speed of light is same. ठीक है, and it is independent of the motion of the source. That is, अगर आपके पास लेट्स से कि एक गाड़ी है और इस गाड़ी के ऊपर एक टॉर्च रखी हुई है, यहाँ पे एक टॉर्च रखी हुई है, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है. ठीक है, ये एक टॉर्च रखी हुई है हमने, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है. तो ये निकलने वाली लाइट जो है ये भी उसी रफ्तार से सफ़र करेगी जिस रफ्तार से एक रेस्ट पर जो लाइट है वो सफ़र करेगी. तो अगर आपको अगर इसको एक और तरह समझते हैं कि सपोज़ करें आपके पास, चलें ये आपके पास एक नीचे एग्जांपल दी हुई है. सो कहता है कि लेट्स से दिस इज़ एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, और आइंस्टाइन ही लग रहा है. सो दिस इज़ आइंस्टाइन एट रेस्ट. ठीक है, ये एस फ्रेम में है और ऐसे इट्स ऑन अर्थ एंड इट एट रेस्ट. एंड दिस अ जेट which is moving at velocity 1000 meters per second. ठीक है, ये अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहा है एस डैश. ठीक है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है विच इज़ एट वेलोसिटी 0 और नॉट मूविंग, एंड देयर इज़ अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश विच इज़ मूविंग एट 1000 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से. ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. सो यानी ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है. अब ये जो जेट है इट फायर अ मिसाइल. ठीक है, सो इट फायर्स अ मिसाइल और मिसाइल की स्पीड है 2000 मीटर्स पर सेकेंड. तो क्या होगा कि ये जो मिसाइल है, सिंस इट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम ए मूविंग जेट, तो मिसाइल की जो टोटल स्पीड होगी वो मिसाइल की स्पीड जिससे वो लॉन्च हुआ है प्लस जिस सोर्स से ने उसको लॉन्च किया है उसकी स्पीड का सम होगी. ठीक है, सो द टोटल स्पीड ऑफ द मिसाइल विल बी दिस 2000 प्लस 1000 दैट इज़ 3000.
ठीक है। सो टोटल स्पीड इसकी क्या होगी 3000 मीटर पर सेकेंड। बट जो हमने ऊपर बात की है कि अगर इसकी जगह पर लाइट हो, ठीक है, नाउ अ लाइट बीम एल इज इमिटेड फ्रॉम दिस स्पेसशिप एट सी, तो दिस स्पेसशिप इज मूविंग अगेन एट 1000 मीटर्स पर सेकेंड, बट एट दिस पॉइंट ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा था और इसने देखा कि इसने लाइट बीम जो है वो लाइट ऑन की है, तो लाइट की बीम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी, ठीक है। सो इसकी स्पीड ऑफ लाइट सी होगी। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रिलेटिविटी अगर आप देखें तो क्या कर रहे थे, हम स्पीड्स को ऐड कर रहे थे, बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रही है कि आप सी के साथ कुछ ऐड नहीं करेंगे। सो स्पीड ऑफ लाइट वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मूविंग सोर्स और इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ रेस्ट सोर्स, यानी अगर लेट्स से ये इसने भी लाइट शाइन की है, इसके हाथ में भी टॉर्च थी और इसने भी लाइट शाइन की है, सो इसकी लाइट और ये जो मूविंग सोर्स है इससे निकलने वाली लाइट की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं होगा, दैट विल बी सी। सो सी इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेकंड पॉस्टुलेट आई होप आपको समझ आ गया कि जो लाइट है वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ, वो इट इंडिपेंडेंट है मोशन ऑफ द सोर्स से, ठीक है। और अच्छा, अब इस चीज़ को रिलेटिविटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो कहते हैं 19th सेंचुरी में मोस्ट फिजिसिस्ट बिलीव दैट लाइट ट्रैवल थ्रू अ हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो साउंड है वो एयर में ट्रैवल करती है ना, सो साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल करती है, तो उसी तरह ये कहते थे यानी साइंटिस्ट दैट जो लाइट है वो ईथर में ट्रैवल करती है। सो माइकलसन एंड मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये प्रूव किया दैट देयर इज़ नो ईथर, बिकॉज इफ़ ईथर एग्जिस्ट तो क्या होगा कि ईथर एक मीडियम है, जैसे हवा है, जैसे एयर है। सो और वो एक लाइक मोशन में है, ठीक है। ईथर इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो if you move in the direction of ether or you move perpendicular, there will be some change in the speed of light, क्योंकि अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मीडियम की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, यू विल हैव डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अगर जिस तरफ हवा चल रही है आप उस तरफ जाना शुरू करें तो ईजिली जा पाएंगे, लेकिन अगर आप उसके परपेंडिकुलर जाना शुरू कर दें या उसके ऑपोजिट जाना शुरू कर दें तो योर स्पीड विल रिड्यूस। सो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और उन्होंने प्रूव किया कि देयर इज़ नो ईथर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वॉज सेम इन बोथ डायरेक्शंस। जिस डायरेक्शन में मतलब जिस भी डायरेक्शन में उन्होंने मेजर की स्पीड ऑफ लाइट, बोथ डायरेक्शन में आंसर जो है वो सी ही आया या कांस्टेंट था। सो दिस इज़ द सेकंड पोस्टुलेट। इसके लिए आप एग्जांपल सिंपली करेंगे एक मूविंग सोर्स पर लाइट बीम के ऑन होने की, ठीक है। अल्टीमेट स्पीड लिमिट भी सो ये आप कह लो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे इसको आप देख लो कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर टू ट्रैवल एट सी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो दिस इज़ द स्पीड लिमिट इन आवर यूनिवर्स, नथिंग कैन मूव ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। किसी भी इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रैवल एट सी एंड बियॉन्ड, तो उसके यानी दूर की बात है, वी कांट इवन ट्रैवल एट सी। सो यानी स्पीड ऑफ लाइट से इस यूनिवर्स में नथिंग मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से सिर्फ फोटोन ही मूव करता है जो कि लाइट का पार्टिकल है। एवरीथिंग एल्स as C has V approaching to C but never equals to C. Okay. Another small thing जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है but I want to just give you a hint of it ताकि हम आगे लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन देख सकें। इट इज़ द गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये फॉर ऑर्डिनरी रिलेटिविटी के लिए है। ऑर्डिनरी रिलेटिविटी जिसमें कि हम स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी उस तक नहीं जा रहे, या आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहे, या आप कह लो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले भी एक रिलेटिविटी थी ना। रिलेटिविटी किस चीज़ की कि भाई दो लोग आपस में, जैसे दो कार्स हैं वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो उन एक कार के लिहाज से दूसरी की स्पीड क्या होगी, या एक बंदा खड़ा हुआ है दूसरा मूव कर रहा है
तो एक के लिहाज से दूसरे की स्पीड या मूव करने वाले के लिहाज से पहले की स्पीड। सो इस चीज़ को पहले भी यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इससे पहले भी इस चीज़ को स्टडी किया जाता था और वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी किया जाता था। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि लेट्स से रेस्ट पे है, किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशंस या उसमें होने वाला इवेंट के बारे में बात करते हैं जो कि मूव कर रहा है। तो सपोज करें इसी तरह हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम एस है, ये रेफरेंस फ्रेम एस डैश है, इसको हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको ब्लैक से। दोनों के ओरिजिन ओ डैश हैं। इसी तरह इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं, ये एक्स डैश और वाई डैश है। ये सिस्टम एस है, ये सिस्टम एस डैश है। सपोज़ करें यहाँ कोई इवेंट होता है या किसी चीज़ की पोजीशन है पी और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में है, ठीक है। एस डैश जो है इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट मेजर करता है, वो कहता है कि दिस पी पॉइंट इज़ एट डिस्टेंस एक्स डैश फ्रॉम माई सेंटर ओ डैश and it is at distance y dash from my again from my center, it is at distance y dash. Similarly this frame was moving, it is moving with speed u, let's say. so ये speed u से move कर रहा है। जब ये अभी चूँकि ये constant हम कह रहे हैं कि inertial frame है, तो ये यहाँ से आया था और इसने कुछ टाइम के बाद इसको यहाँ पे भी ये रुका, मतलब रुका तो नहीं यानी यहाँ से भी गुज़रा और यहाँ से गुजरने के बाद फिर ये यहाँ पे आ गया और अब ये और आगे चला जाएगा। ये वाला तो रेस्ट पे है, ये तो हमेशा से रेस्ट पे था। सो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम एट सम टाइम दिस फ्रेम वाज हियर, ठीक है, एट पॉइंट ओ और ओ डैश कंसाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मूव कर गया आगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही पॉइंट पी जो है, जो कि जो इवेंट एस डैश में हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे कि इसके अकॉर्डिंग वो एक्स होगा, ठीक है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो एक्स होगा क्योंकि ये एक्स वाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बट देन अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि एक्स को मैं इस बंदे की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी टर्म में लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, या मैं एक्स डैश को एक्स में लिखना चाहती हूँ, तो अगर आप देखो कि जो टोटल एक्स है इट इज़ इक्वल टू दिस डिस्टेंस एक्स डैश प्लस दिस डिस्टेंस विच इज़ यू टी। यू टी क्या डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू वी टी के अकॉर्डिंग, सिंस this frame of reference is moving at speed u, so the distance the o dash traveled in time t is s is equal to u, which is the speed of this frame of reference, times t. so ut एक distance जो है this distance plus this x dash distance जो है इसके इक्वल होगा this x distance, ठीक है। सो यानी x को मैं लिख सकती हूँ x dash plus of ut। सिमिलरली अब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी, लेट्स से इन दिस केस द मोशन इज़ हैपनिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक्स डैश जो है डायमेंशन, उसके अंदर ये मोशन हो रही है। सो सिर्फ वही डायरेक्शन जिसमें मोशन हो रही होगी उसमें रिलेटिविटी अप्लाई होगी और उसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा। जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं दैट इज़ वाई एंड जी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके अकॉर्डिंग ये जो यानी आप कह लें कि ऑर्डिनरी रिलेटिविटी थी, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, ये ऑर्डिनरी रिलेटिविटी है जिसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो इसके अकॉर्डिंग टाइम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ पोजीशंस चेंज हो रही हैं और इन्हीं पोजीशन के अकॉर्डिंग ज़ाहिर है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ दिस इवेंट, लेट्स से यहाँ पे कोई फायर क्रैकर फटा है, कुछ हुआ है, यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई इवेंट हुआ है, इस इवेंट का टाइम इस बंदे ने भी नोट किया और इसने भी नोट किया। सो जो टाइम है टी डैश जो एस डैश ने मेजर किया और जो टी जो कि एस ने मेजर किया, ये दोनों सेम होंगे अकॉर्डिंग टू दिस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बट हमें पता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आगे जाके इट्स नॉट करेक्ट, इट विल बी मॉडिफाइड, और इसको हम मॉडिफाई करेंगे लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें कि हम आइंस्टाइन के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक हमने जस्ट स्टडी किया कि what is the introduction of special theory of relativity, why we study it, what are the fundamental postulates, and what are the fundamental laws, so invariance of physical laws, और में हमने ये बेसिकली अब ये जो दोनों हमने स्टडी की ये इट्सेल्फ लॉज हैं। सो इनवेरियंस ऑफ द फिजिकल लॉ इज़ अ लॉ,
ठीक है. For all natural frames this will be same, and also the speed of light is same for all natural frames is another law. So ये दो laws of special theory of relativity हमने study किए. And also we looked at the speed limit and briefly on the Galilean coordinate transformation, just to help us understand the next topic, which is Lorentz transformation, just to see how relativity works. तो relativity ऐसे work करती है, special theory of relativity कैसे करेगी वो हम Lorentz transformation में देखेंगे.